بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور وعلی اللہ۔ آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام بچوں کی بقرعید حاجی عبدالحبیب اتاری کے ساتھ اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کا پروگرام بہت ہی اسپیشل ہونے والا ہے، جی ہاں، کیونکہ بقرعید کا سیزن جاری ہے اور آج عید کا دن ہے۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ اس پروگرام میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ اس پروگرام میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ، اور یہاں جو بچے موجود ہیں ان سے کچھ سوالات بھی ہوں گے۔ آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اپنے پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بقرعید عید کی رونقیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور گیٹس میں چل کے ناظر، الحمدللہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہم آپ کو ملوائیں گے ہمارے اسپیشل گیسٹ اس پروگرام کے، جن کا نام ہے حاجی محمد عبدالحبیب اتاری بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کو ہمارے پروگرام بچوں کی بقرعید آپ کے ساتھ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ شامل کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں مزے مزے کی ایکٹیویٹیز ہونے والی ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کچھ سوال جواب ہوں گے اور آپ بچوں کے ساتھ بھی کچھ سوال جواب کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کی ذات پروگرام کو آگے لے کے بڑھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بقرعید عید کی رونقیں۔
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چارہ ہے، گارا ہے گا یوں ہی ان کا چارہ رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا 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 رضا، نفس دشمن گئے گو میں ناراضا، نفس دشمن گئے گو میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید سے مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں اور عبدالحبیب بھائی بھی موجود ہیں، اور اب بڑھتے ہیں اپنے بڑے ہی پیارے سیگمنٹ، اور سیگمنٹ کا نام ہے بچے اور عبدالحبیب اتاری بھائی۔ بقرعید عید کی رونقیں، اور اس سیگمنٹ میں کیا ہونے والا ہے عبدالحبیب بھائی؟ اس سیگمنٹ میں یہ ہوگا کہ بچے آپ سے کچھ سوالات کریں گے، اور ہو سکتا ہے مشکل سوالات بھی ہوں، آسان سوالات بھی ہوں، لیکن آپ کو ان کے جوابات دینے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ ریڈی ہیں؟ بالکل ریڈی ہیں، اور آج میں یہ بتا دوں ہمارے ویورز کو کہ
کہ جہاں بچے موجود ہیں وہاں ہمارے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی بڑی تعداد میں، چونکہ وہ ہمارے گھر آ رہے تھے اور ہمارا یہ پروگرام ہماری عمارت میں ہی ہو رہا تھا تو ہم نے پروگرام میں ان کو ایڈ ہی کر لیا ہے. الحمدللہ پاکستان بھر سے ٹریول کر کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کل رات سے موجود ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، مدنی مذاکرے میں شرکت کی، اور آج عید کا جو پروگرام آپ کے لیے ہم کر رہے ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو جہاں بچے مجھ سے سوال کریں گے، کچھ سوال انشاءاللہ ہم ان سے بھی کر لیں گے، تو ایک مل جل کے عید کا سما بناتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تو پہلا سوال عبدالحبیب بھائی سے کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ جی آپ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال ہے کہ عید کا دن بچوں کو کیسے گزارنا چاہیے؟ دیکھیں عید تو ہوتی ہی بچوں کی ہے، اور خاص طور پہ بقرہ عید جو ہے وہ تو بچوں کے لیے زیادہ انجوائے کی عید ہوتی ہے. عیدی کے ساتھ ساتھ مزے مزے کے کھانے بھی ملتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قربانی کا جو منظر ہے وہ بھی ایک بڑا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. تو یقیناً عید کا دن بھی سب سے مین چیز، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، عید کے دن بھی ہمیں اللہ کی رضا والے کاموں میں گزارنا چاہیے، گناہ نہیں کرنے چاہیے. اللہ نے عید دی ہے تو اللہ کو ناراض نہ کریں. تو عید کی نماز پڑھیں، عید کی نماز سے پہلے فجر کی نماز پڑھیں. جب امی ابو اٹھائیں تو فوراً اٹھ جائیں، اور جب کپڑے پہننے کا کہیں تو تیار ٹائم پہ ہو جائیں، تاکہ ابو کو انتظار نہ کرنا پڑے عید کی نماز کے لیے. اور عید کی نماز کے بعد قربانی کے معاملات میں بھی اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں، اور کوشش کریں کہ ضد نہ کریں، کیونکہ اس دن امی ابو پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. بقرہ عید میں گھر میں گوشت کٹ رہا ہوتا ہے، قربانی کے کھانے پکانے وغیرہ کی تیاری ہوتی ہے، تو ہمیں جو ہے کسی طریقے سے بھی والدین کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. یقیناً خوشیاں منانی چاہیے. آپ کے لیے بھی میسج ہے، ہمارے سوشل میڈیا والوں کے لیے بھی اور ویورز کے لیے بھی. عید اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے، جب بھی نعمت ملے اللہ کو راضی کریں، اسے ناراض نہ کریں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی حاجی عبدالحبیب بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ ہاں یہ تھوڑا سا آپ نے بڑا ہی ٹپیکل کوشچن کر لیا ہے. میں سچ بتا رہا ہوں، کوئی اس کو عاجزی انکساری نہ سمجھے کہ مجھے یاد نہیں ہے، اور میں کوشش بھی نہیں کرتا اس کو کاؤنٹ کرنے کی کہ بندہ بڑا ہی مارتا رہے کہ میں نے اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے. دعا یہ ہے کہ جو کیے ہیں اللہ قبول فرما لے اور اللہ بار بار عطا بھی فرمائے. اور میری دعا ہے اللہ آپ سب کو بھی اور آپ سب کے والدین کو بھی بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. جی آپ کو جواب مل گیا اس کا. چلیں اگلا سوال کون کرے گا؟ جی جی حج کے دوران آپ کے ساتھ کوئی دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے؟ جی حج کے دوران اصل میں حج ہوتا ہی بڑا یادگار سفر ہے، اور حج میں ظاہر ہے بہت سارے آپ کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں. اب آپ نے دلچسپ واقعہ پوچھا ہے تو دلچسپ تو نہیں کہیں گے، تھوڑا سا مشکل یہ کہیں گے کہ حج کے دوران بعض اوقات حاجیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا خیمہ بھول جاتے ہیں، یا ان کو خیمے کا راستہ نہیں ملتا. مینا عرفات میں بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے، اور اس پہ بعض اوقات بڑی تھکن بھی لگی، ڈھونڈنے میں ٹائم بھی لگا. اور مجھے یاد ہے ایک بار ایسا ہوا کہ ہم پیدل حج پہ گئے تھے، تو قبلہ مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. تو مفتی صاحب اور ہم آپس میں بچھڑ گئے، تو ہم تو اپنے خیمے میں پہنچ گئے، مفتی صاحب نہیں پہنچ سکے. اور آپ یقین کریں اس دن جو گرمی تھی سبحان اللہ، تو تھکن سے بہت زبردست، برا حال تو نہیں کہوں گا، بہت اچھا حال تھا. تو ہمیں پھر مفتی صاحب کی کال آئی کہ بھائی ہمیں تو خیمہ ہی نہیں مل رہا. پھر ان سے کوئی نشانی پوچھی اور ہمارے خیمے سے کچھ لوگ گئے اور وہ مفتی صاحب کو لے کر آئے. تو اس سے سیکھنے کو یہ ملا کہ حج کریں تو کسی تجربے کار آدمی کے ساتھ کریں، اور اپنے خیمے کے لیے اگر بہتر یہ کہ جو معلم کی بسیں ہوتی ہیں انہی کے ساتھ ٹریول کریں، تو انشاءاللہ آپ ٹائم پہ حج پہ پہنچ جائیں گے. اچھا ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب پہلی بار حج پر گیا تھا تو میرا یہ مشورہ بھی ہے، جو ماشاءاللہ ینگسٹر بیٹھے ہیں، جب جوانی میں حج کریں نا تو حج کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کریں اور ایکسپیرینس بھی کریں. تو میں جب گیا تو نارملی لوگ کرتے ہی ہیں کہ قربانی دوستوں کو دے دیتے ہیں کہ یار ہماری حج کی قربانی آپ کر دیں. میں نے کہا نہیں، میں نے قربان گاہ بھی دیکھنی ہے اور اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی ہے. تو ہمارے اس گروپ میں 47 لوگ تھے، تو سب نے کیا کیا، وہ 47 کی 47 قربانیاں ہمارے حوالے کر دی. ہم 2-3 افراد تھے، ہم نے مل کر 47 بکرے ذبح کیے. تو زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ اتنے سارے جانور ہم نے ذبح کیے ہوں. ہمارا احرام بھی خون آلود ہو گیا تھا، لیکن دیٹ واز امیزنگ ایکسپیرینس کہ اللہ کی راہ میں وہ جانور مینا کی وادیوں میں قربان کرنا. تو بہرحال اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم سب کو حج نصیب فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی اگلا سوال کیجیے. کیا آپ کو کسی جانور یا بیل نے ٹکر ماری ہے؟ ہاں ٹکریں تو لگتی رہتی ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو منڈی جاتے تھے، ابھی تو یہ پیچھے بھی کہیں ٹکر نہ مار دیں، ان کو یاد نہ دلا دیجیے گا. تو موجود تو یہ بھی ہے، برسی سے نہ بندے ہوتے تو اب تک تو یہ ایکسپیرینس آج ہی ہو چکا ہوتا. تو ایسا تو ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جانور گھمانے گئے تو کبھی ہمارے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ایک بار ہوا تھا. جب ہم خارا در میں رہتے تھے تو ہمارا ایک بڑا مضبوط بیل تھا یا بچڑا تھا،
तो वो बड़ा तगड़ा था ना, ऑस्ट्रेलियन, अब बल्कि बैल ही था, ऑस्ट्रेलियन बैल था। तो वो हम घुमाने निकले तो वो भाग गया, हम छोटे थे, हमारे हाथ छुड़ाए और वो तो अब उसके पीछे पूरा मोहल्ला भागा, ठीक है ना, हम तो पीछे कहीं रह गए, सारा मोहल्ला भाग रहा है, बच्चे भाग रहे हैं, बड़े भाग रहे हैं। अच्छा, अब ये उस दिन सीखने को मिला कि आप जानवर भागे तो उसके पीछे भागे तो वो और भागता है। तो बहरहाल वो भागते रहे, वो आगे भागता रहा, पता नहीं कितनी स्कूटरों को गिराया, कितने लोगों को उसने टक्करें मारी होंगी। अच्छा, फिर किसी समझदार आदमी ने कहा कि इसको छोड़ दें और मोटरसाइकिल पे एक बंदा सिर्फ इसका पीछा करता रहे। अब वो बात बाद में समझ आई कि ये थक कर कहीं खड़ा हो जाएगा, क्योंकि शहर में कहाँ चला जाएगा। तो घूमता रहा, एक मोटरसाइकिल वाले दो तीन भाई थे, वो उनके पीछे जाते रहे, कहीं जाके वो थक के खड़ा हो गया, उन्होंने जाके उसकी रस्सी पकड़ी, उसको चारा वारा खिलाया, पानी पिलाया, उसको ले आए। तो ये भी तरीका समझ आया। और एक और बात मुझे अर्ज करनी थी, चले बड़ा अच्छा हो गया आपने सवाल कर लिया, कि ये आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोस आती हैं कि छोटे बच्चे के साथ बड़ा जानवर दे देते हैं और वो बड़ा जानवर जो है फिर उस छोटे बच्चे पर हमला कर देता है या उसे गिरा देता है। तो देखिए, ये जानवर है, हम इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ऊंट या बैल दे देते हैं और खुदा ना खास्ता वो अगर उसको गिरा दे, तो ये नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों को साथ रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको किस कलर के और कौन से जानवर पसंद है? किस कलर की और कौन से पसंद है? देखिए, अमीर अहले सुन्नत ने कल माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे में बड़ी प्यारी रहनुमाई फरमाई कि ऐसा मेंढा जो अंधेरे में देखता हो, अंधेरे में बैठता हो, अंधेरे में चलता हो, सियाही में बैठता हो, सियाही में चलता हो और सियाही में देखता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा मेंढा जिसकी आंखों के गिर्द काला कलर हो, पेट पर काला कलर हो और पैरों पे काला कलर हो, तो ये एक्चुअली चित कुबरा भी होता है। तो ये वाला मेंढा मिल जाए, ढूंढना मुश्किल है, तो ये यकीनन पसंद है, क्योंकि नबी पाक ने जो ज़िबा फरमाया वो सबसे बेहतरीन है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपसे ये सवाल है कि बचपन में आपका क्या दिल करता था कि बैल आए या बकरा आए? हाँ, असल में बचपन में यकीनन दोनों का ही दिल करता था कि बहुत सारे आ जाएं, और ये हम अब्बू को कहते थे गरीब जानवर लाना। अच्छा, ये वो इस्तिलाह है कि भाई जानवर गरीब से मुराद ये जो बच्चे के साथ चल सके, हम उसे घुमा सकें। तो अब्बू ये कोशिश करते थे कि जानवर को ऐसा देखते थे कि जो बच्चे भी जिसे घुमा सकें। तो भाई जानवर जो भी हो, मैंने देखा है कि जिसके घर में जैसा भी जानवर आ जाए उसको पसंद ही आता है। तो यही था कि जो भी आ जाए, ज़्यादा आ जाए और हम उसको घुमाएं फिराएं, खूब चारा खिलाएं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं चारा लेने जाता था, उनके लिए घास लेकर आता था, फिर वो हम घास बनाते थे, पानी मिलाकर वो हमें समझाते थे कि इस तरह घास बनती है, तो वो बनाते थे, कुत्तर लाते थे, भूसी लाते थे, नाम भी कुछ याद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक से जानवर को खिलाते थे। सुबह उठते ही पहले अपना नाश्ता बाद में करना है, जानवर का नाश्ता पहले करवाना है। तो एक काफ़ी उनसियत सी हो जाती थी। और यकीनन ईद वाले दिन अफसुर्दगी भी होती थी कि वो जो हमारा साथ इतना प्यार हो जाता है इस जानवर का, वो हमसे दूर चला गया। तो ये जाहिर है कि वो एक अफसोस बच्चों आपको भी होता है और हमें भी होता था। जी माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जानवर को ईद पे कुर्बान होने नहीं दे सकते। हाँ। बोलते हैं भाई नहीं कुर्बान, उनको किसा समझाया जाए? हाँ, ये वाकई ऐसा वीडियोस में भी देखा, और बच्चे लिपट जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि हम अपना जानवर कुर्बान नहीं करेंगे। एक्चुअली कुर्बानी जो है ना, वो यही दर्स है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, उनको तो हुक्म ये हुआ था अपने बेटे को ज़िबा करें। तो उनको ऐसी चीज की कुर्बानी का कहा गया जो दिल से बहुत करीब थी। तो आज हमें भी जानवर पहले हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालते हैं, और फिर जब उसको कुर्बान करते हैं तो दिल पर अफसोस होता है। तो असल कुर्बानी है इसी चीज का नाम कि जो मेरी पसंदीदा चीज है मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करूं। अब हमारे माशाल्लाह बड़े भी बैठे हैं और व्यूवर्स भी देख रहे हैं, सिर्फ जानवर कुर्बान ना करें बकरा ईद में, हम इस दिन अपनी ख्वाहिशात भी कुर्बान करें, इस दिन अपनी बुरी आदतें भी कुर्बान करें, और इस दिन ये भी ज़हन बनाएं कि आज तो अपने पैसों से जानवर कुर्बान कर रहा हूं, वो वक्त आएगा तो मैं अल्लाह की राह में अपनी जान भी कुर्बान करूंगा, अपना वक्त भी कुर्बान करूंगा, अपना माल भी कुर्बान करूंगा। अब जरा सोचे बच्चों, आप एक बात थोड़ा गौर करें, हमारे सोशल मीडिया वाले भी गौर करें कि हजरत इब्राहिम को हजरत इस्माइल जो मिले थे ना, वो 99 साल की उम्र में मिले थे। आपने 99 ईयर्स तक दुआएं की थी जब अल्लाह ने बेटा दिया था। अब इतनी मुश्किल से जिसको बेटा मिले वो कितना प्यारा होगा, और उसी को ज़िबा करने का हुक्म दे दिया गया। तो अब आप वो भी ज़िबा करने चल पड़े। तो यहाँ हमारे लिए ये दर्स है कि वो तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे थे। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता कि हम सबको ये कह दिया जाता कि जिंदगी में एक बार, हर बकरा ईद में नहीं, जिंदगी में एक बार अपना अपना एक बच्चा कुर्बान करो, तो हमारा क्या हाल होता। हमें तो ये कुर्बानी मांगी ही नहीं गई, हमें तो कहा गया अच्छा गरीब हैं तो कुर्बानी नहीं है, पैसे वाले हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, अब कुर्बानी वाजिब है, और वो भी बकरे की कर दें, आप छोटे से जानवर की कर दें, गाय में एक हिस्सा मिला लें। कितना आसान कर दिया अल्लाह ने हमारे लिए।
تو ہمیں اس قربانی کرتے وقت شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج تیری راہ میں قربانی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو غم زدہ ہونا کوئی بات نہیں, لیکن ضد نہ کریں اور ہونے دے اسے قربان. اور انشاءاللہ یہ جو آپ کے جانور ہیں نا, یہ قیامت کے جنت میں آپ کو ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. یہ جنت کی سواریاں ہوں گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی اگلا سوال. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ زیادہ کون سی دعا کرتے ہیں؟ زیادہ کون سی دعا کرتے ہیں؟ ہاں, اصل دعا بھی جو ہے نا, ویسے تو میرا ماننا یہ ہے, یا میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ زیادہ کرنی چاہیے. یعنی اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھایا کچھ دعائیں, سبحان اللہ, جس نے دینا ہے وہی بتا رہا ہے مجھ سے کیسے مانگو, تو قرآن میں اس نے بتا دیا. اچھا, پھر حدیث میں نبی پاک نے دعائیں جو ہمیں بتائیں, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ دعائیں کی جائیں. مجھے عربی دعائیں کافی پسند ہیں, اور اگر سب سے زیادہ میں کوئی دعا کرتا ہوں تو وہ قرآن پاک کی وہ دعا ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس میں دنیا کی بہتری کی بھی دعا ہے, آخرت کی بھی دعا ہے, اور عذاب جہنم سے نجات کی بھی دعا ہے. جی ماشاءاللہ. جی فیضان بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اس کا. جی اگلا سوال. عبدالحبیب بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ قربانی اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں یا کسی کے ذریعے کرواتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, قربانی بہتر تو یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کرے, یا کم از کم وہاں موجود رہے. تو میں جب پاکستان میں ہوتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کروں, لیکن چونکہ ہم ایکسپرٹ نہیں ہے تو کسائی کو بھی کہتا ہوں بھائی آپ بھی ہاتھ رکھو تاکہ صحیح جگہ پر ہم قربانی کریں. کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اناڑی بندہ جب قربانی کرتا ہے تو جانور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ چھری تیز کر کے بالکل پہلی باری میں وہ ذبح ہو جائے. تو ہمیں جو قصاب ہوتے ہیں ان کا ساتھ لینا چاہیے, مگر ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیں, اگر خود قربانی کر رہے ہیں تو بھی, اور اگر ایک سے زیادہ بندے کر رہے ہیں تو ان سب کو ایک بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہوگا. بعض اوقات بندہ خود قربانی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ قصاب ہوتا ہے تو خود کچھ نہیں کہتا, تو ایسا نہیں ہے. اگر دو بندے کر رہے ہیں تو دونوں کو کہنا ہوگا, ایک کر رہا ہے تو ان کو بھی کہنا ہوگا. ٹھیک ہے جی پیارے بچوں کے کے ناظرین, الحمدللہ بچے بھی کچھ موجود ہیں اور سوشل میڈیا کے ناظرین بھی کچھ موجود ہیں, حاضرین بھی کچھ موجود ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم ایک مقابلہ کرانے جا رہے ہیں جو کہ عبدالحبیب بھائی سے تو نہیں ہوگا, لیکن جو سوشل میڈیا کے حاضرین ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں ان کے درمیان کچھ مقابلہ ہونے والا ہے. اور ٹیم بنا دیتے ہیں عبدالحبیب بھائی, سوشل میڈیا کے حاضرین کے لیے ایک ٹیم بناتے ہیں, ٹیم اے, اور بچوں کی بناتے ہیں ٹیم بی. تو اب آپ نے ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے میں بھی کروں گا ان سے سوالات. نہیں, اچھا سوالات, یہ سوالات. چلے بھائی آپ اپنی طرف سے 4 بندے سلیکٹ کر لیں. کتنے کر لیں, کتنے ٹیم اے بی میں ہوں گے؟ 5 کر لیں. سوشل میڈیا والے 5 ہو جائیں, 5 بچے. اب دیکھو بچوں سے مقابلہ, عزت رکھ لینا, ٹھیک ہے نا. تو کچھ آپ سے بھی سوال ہوں گے اور ان سے بھی سوال ہوں گے, اور یہ پوائنٹس بیس ہوگا, تو اس کو انشاءاللہ پلان کرتے ہیں انشاءاللہ. اب بچوں کے درمیان تو مقابلے ہوتے تھے, سوشل میڈیا والے جب آ ہی گئے تو ہم نے سوچا ان کو بھی مقابلے میں شامل کر لیتے ہیں. ہاں, یہ انوکھا ذہنی آزمائش ہوگا. اب دیکھنا ہے بچے صحیح جواب دیتے ہیں یا بڑے صحیح دیتے ہیں. تو اب دونوں سے سوال ہوں گے. اچھا یہ ان کو بھی ایک دے دیں, آپ ادھر بیٹھ جاؤ, چلو آپ بھی دے دیں. اچھا اب سوال کریں گے پہلے آپ سے, وہ کون تھے جن کی ایڑیاں لگنے سے آب زمزم جاری ہوا تھا؟ آپ دیکھیں کون, دیکھیں آپ پہلے دیکھ لیں, ہماری طرف جواب صحیح والا ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم یا حضرت اسماعیل, اس پہ دیکھ کر جواب اسی میں. ہاں چلیں بتائیے. 4 تو حضرت اسماعیل ہیں. جوشی بھائی آپ بھی بتائیں نا, اوپر کر لیں. ہاں یہ سب کا کہنا ہے حضرت اسماعیل. اب بچے بتائیں وہ کون تھے جن کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم جاری ہوا؟ جی بچے اوپر کریں. ہاں بچے بھی کہہ رہے ہیں حضرت اسماعیل. جناب جواب دونوں نے درست دے دیا ہے. اچھا اب سوال, ویسے ایکچولی یہ سوال آپ کا درست ہوا ہے, بچوں سے تو ہم نے چیری کروایا تھا, آپ کا 1 نمبر ہو گیا ہے. اب بچوں سے سوال ہے, آسمان سے اللہ پاک نے جو بینڈا بھیجا تھا وہ کن کے بدلے ذبح ہوا تھا؟ ہاں بھائی بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل. چلیں آپ کی کنفرمیشن کر لیتے ہیں بھائی, بتائیے. ہاں بھائی یہاں بھی حضرت اسماعیل ہے, بچوں نے بھی جواب درست دے دیا ہے, جواب درست ہو گیا ہے. سب مل کے کہیے سبحان اللہ. وہ کون سے نبی ہیں جو اللہ پاک کے حکم پر اپنی بیوی اور بچے کو ریگستان میں چھوڑ آئے تھے؟ جی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام. بچوں بتاؤ کون سا جواب ٹھیک ہے؟ بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں جناب. جواب ہمارے سوشل میڈیا والے بھی معلومات رکھتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. اچھا ذبیح اللہ کس کا لقب ہے؟ بچے بتائیں گے. ذبیح اللہ, میرا خیال ہے بچے غلطی کر رہے ہیں. بچے ہاں حضرت اسماعیل ہے, آپ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. اب آتے ہیں بڑوں کی طرف. یہ بتائیے خلیل اللہ کس کا لقب ہے؟ خلیل اللہ حضرت جوشی بھائی غلط کہہ رہے ہیں, بچت ہو گئی. چلے جناب برابر کرنا.
आइसक्रीम की वजह से गलती हो गई है, इसलिए इनका भी एक नंबर कट गया है। या तो आइसक्रीम खा लें या जवाब दे दें, और जनाब सोशल मीडिया वाले बराबर हो गए। अच्छा, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल, इन दोनों में से बेटा कौन है? बेटा कौन है? हाँ, हजरत इस्माइल है। जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। अच्छा, अब ये बताएंगे आग में किसको डाला गया था? जनाब जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, वो कौन है कि जिनके खड़े होने की जगह को मुसल्ला बनाने का कुरान में हुक्म मिला है, और उस जगह को मकामे डैश कहा जाता है, क्योंकि नाम आ जाएगा उनका। तो बताइए जनाब, मकामे इब्राहिम। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। वैसे सच्ची बात बताऊं, अच्छा, किनकी वालदा की याद में सफा और मरवा की सई है? हाँ, हजरत इस्माइल, जी हाँ, बीबी हाजरा थी ना, जिनकी याद में सफा मरवा की सई है। तो सुभान अल्लाह, क्या खानदान है नादरीन। इनकी याद में कुर्बानी भी है, इनकी याद में हज के अय्याम भी हैं, इनकी याद में सफा मरवा भी है, मकाम इब्राहिम भी है। अल्लाह तुरबत हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। ये मुकाबला टाई हो गया जनाब। तो अब सवाल और जवाब की तरफ आते हैं जनाब। अब लगता है कि कुछ मुश्किल करना पड़ेगा बच्चों से और बड़ों से। चले जनाब, आप सवाल होंगे, माइक दे दें। अच्छा, अब हम तीन टीमें बना रहे हैं। ये टीम ए हो गई, टीम बी हो गई और टीम सी हो गई, ताकि सब एक्टिव रहें और सबसे सवाल जवाब हो। देखें कौन जवाब देता है। ठीक है, टीम ए, सोशल मीडिया वालों, सवाल है, जन्नती पत्थर हजरे अस्वद कौन से नबी अपने साथ लाए थे? वो कौन से नबी थे जो जन्नती पत्थर हजरे अस्वद अपने साथ लाए थे? इस सवाल में ही जवाब मौजूद है, इसी सवाल में जवाब मौजूद है। अगर गौर करें, वो कौन से नबी हैं जो जन्नती पत्थर अपने साथ लाए थे? जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं जनाब, जने आपकी तरफ से तो गलती हो गई है। अब टीम बी जवाब देगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप जन्नत से आए थे ना, तो अपने साथ हजरे अस्वद लाए थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आप जरा स्कोर याद रखिएगा। टीम बी का 1 नंबर हो गया। टीम सी, जबले नूर किस शहर में है? मक्का शरीफ। जबले नूर मक्का शरीफ में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सोशल मीडिया वालों, हिम्मत करो। वो कौन सा परिंदा है जो जमीन के ऊपर रहते हुए जान लेता है कि इस जगह जमीन में पानी है या नहीं? और ये हजरत नहीं, दोबारा गौर कीजिए, ये हजरत हुदहुद, हाँ, ये हजरत सुलेमान ने भेजा था कि उसने आके पानी का निजाम तलाश किया। उस्मान भाई ने टीम को कुछ सहारा दे दिया है, वरना ये 2-0 हो जाने थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब टीम बी से सवाल है, किस सहाबी ने हुजूर अलैहिस्सलाम की 10 साल खिदमत की? हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम सी से ताल्लुक है, किनको देखने से हज मकबूल का सवाब मिलता है? वालिदैन को मोहब्बत से देखें, हज मकबूल का सवाब। तो फिर क्यों ना वालिदैन तो घर में रोज ही होते हैं, रोज खिदमत करें, रोज प्यार से देखें, हज का सवाब कमाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, किस सहाबी ने सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की हैं? हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जरा मिलके कहिए ना सुभान अल्लाह। चलें जनाब, ये मुश्किल सवाल था मगर फिर भी दे दिया, गुड। अच्छा जनाब, बकरा ईद के क्या क्या नाम होते हैं बताइए? टीम बी, ईद उल अज़हा और बड़ी ईद, और भी कुछ कहते हैं, ईद कुर्बान। ईद कुर्बान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम की छठे आसमान पर किस नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। चलें, अब सवाल ये है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नबी पाक ने एक ही हज किया, उस हज में कितने ऊंट नहर फरमाए थे मेरे आका ने? कुर्बान कितने ऊंट किए थे? 63। अरे वाह, किसने जवाब दिया? वाह भाई वाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ये कुछ लगता है आसपास से इमदाद दी गई है। अच्छा जनाब, टीम बी, अच्छा अपने ही है, फिर ठीक है। टीम बी से सवाल है, ये बताइए कि 2 हफ्तों में कितने घंटे होते हैं? 336। अरे वाह भाई, कंप्यूटर लाए हैं साथ। 2 हफ्तों में
336 घंटे होते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, छोटी मुन्नी हमारे पास मौजूद हैं, मेरा ख्याल है इनसे भी कोई सवाल कर लेते हैं। टीम आपकी तरफ से इनको माइक दें। ये बताइए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अम्मी अब्बू का नाम क्या था? सीधे हाथ पे माइक लेंगे और जवाब देंगे। हजरत बीबी आमना और हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला। जवाब दुरुस्त दे दिया। अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मिशकात ने भी जवाब दुरुस्त दे दिया। अच्छा जनाब, टीम ए की तरफ दोबारा आएंगे। कुरान पाक का रोजाना एक पाव पारा पढ़ा जाए तो कितने दिनों में कुरान पाक खत्म होगा? अब देखिए किसका मैथ्स पक्का है। एक पाव पारा पढ़ा जाए तो कितने दिन में कुरान खत्म होगा? 120। हाँ, तो अब आपने 120 दिन में कुरान पूरा करना है इंशाल्लाह। ये भी नियत कर लेना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अरे भाई, टीम बी की बारी है। ऐसा कौन सा जानवर है जो सोते हुए भी आंखें बंद नहीं करता? मेंढक। हाँ जनाब, मेंढक सोता भी है तो आंखें बंद नहीं करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अरे भाई, ये बताइए, बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों बेटों का नाम क्या था? मशहूर शहजादे। दे दे भाई। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इमाम हुसैन। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चले भाई, अब मैं रिजल्ट अनाउंस नहीं करता, ईद का दिन है इसलिए सबको ही हम जीतवा देते हैं इंशाल्लाह। चले, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब राउंड 2, इसी सेगमेंट का राउंड 2। अच्छा, इसमें मुकाबला होगा। अब क्या होगा इसमें? अब इसमें ये होगा कि आपने इनको कोई वर्ड बोलना है और इन वर्ड से शेर शुरू करना है। अच्छा, चले भाई, ये बड़ा मुश्किल राउंड है, लेकिन नात के अशार होंगे। तो और भी बहुत सारे अशार याद होंगे, सिर्फ नात के अशार होंगे, ठीक है? तो अब मैंने वर्ड बोलना है और उस वर्ड से शेर सुनाएंगे। मैं ही बोल दूं तो लिखे रहे हैं सारे। चलें, वाव से शुरू होने वाला कोई शेर सुनाए नात का। वाव से, बड़ा मशहूर कलाम है, उसका पहला ही शेर है। वाव से शुरू होने वाला। वाह क्या जूदे करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जवाब इनका दुरुस्त मान लेते हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। चले भाई, बी टीम भी वाव से कोई शेर सुना दे। वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते तेरे हैं। दिन है बहार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। भी वाव से कोई शेर सुना है जी, जल्दी करें। वाह क्या मर्तबा है गौसे आला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जवाब आपका भी दुरुस्त मान लेते चले जनाब। अच्छा जनाब, जीम से शेर सुनाएंगे। जीम से थोड़ा सा मुश्किल है। शहर मदीना कैसा है? नहीं, जाने वालों के बना दिया इन्होंने। आने वालों को जाने वालों बना दिया इन्होंने जीम के लिए। जिसको चाहा मीठे मदीने का मेहमान किया। हाँ भाई वाह, इनको तो अगली सीट पे बिठाओ भाई, आपको बचा रहे हैं। जिसको चाहा मीठे मदीने का उनको मेहमान किया। चले जरा मान लेते हैं ये शेर भी। आप सुना दे मीम से कोई शेर। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने। मेरे आका का, मिल के पढ़ लें। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। चले जनाब, अब बारी है यहाँ वाले इस्लामी भाइयों की। अच्छा आप सुनाए काफ से कोई शेर सुनाए। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोंदा मदीना क्या है। बात है, ये भी तर्ज में पढ़ लेते हैं। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा अलिफ से शेर सुनाएंगे। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। ये आप एक ही लाइन सुनाते, अगली लाइन तो नहीं, इसके बाद अगली लाइन भी है इसकी। हाँ, आने वालों ये तो बताओ सर उनके कदमों में रखकर जी, है ना, बहुत प्यारा शेर है। बहरहाल चलें, इनका शेर भी मान लेते हैं। उनकी महक ने दिल के गूचे खिला दिए हैं। अगली लाइन तो पढ़ा करो, ये सिर्फ हेडिंग पढ़ देते हो। तीसरा,
उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। चले मान लेते हैं आपका शेर। अलिफ से आप भी सुनाए भाई। ए काश मैं बन जाऊं मदीने का ऐसे नहीं मुसाफिर, तर्ज में सुनाए ना। ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। अच्छा आइन से शेर सुनाए, आइन से। अता कर दो मदीने की इजाजत या रसूल अल्लाह, करूँ मैं सब्ज गुंबद की जियारत या रसूल आमीन अल्लाह। आमीन। अल्लाह आज के प्रोग्राम की बरकत से हम सबको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। आमीन। क्या बात है जनाब, मुकाबला बड़ा जबरदस्त जा रहा है। शीन से शेर सुनाएंगे। शीन। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा यसरब के के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। माशाल्लाह क्या बात है भाई, ये सरकार के गुलाम सारे ही हैं, सबको नाते याद है माशाल्लाह। ता से शेर सुनाए। आखिरी चांस से सब टीमों के पास, कोई एक गलती करेगा तो दूसरा आगे बढ़ जाएगा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। सी के पास, और आपने हमें शेर सुनाना है वाव से। वाव तो हो गया। मीम से। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। तीनों टीमें जीत गई हैं। अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आमीन। बड़ा आसान सवाल है, जी। लेकिन अब डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला और है। मुश्किल भी हैं। जी हाँ। अच्छा अब कौन से हैं भाई? अच्छा चलें जनाब, अब जरा मुश्किल आखिरी राउंड है। हम चाहते हैं इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का फैसला हो जाए, तो टीमें तैयार हो जाए। माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत के पोते भी आ गए हैं, खानदान अमीर अहले सुन्नत के भी चश्मो चिराग आ गए हैं। तो हमारे उसैद भाई को भी इजाजत है जवाब देने की। जंगे बदर में कितने सहाबा इकराम थे? टीम ए से सवाल है। 313। 313 जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले माशाल्लाह छोटी गुड़िया भी आ गई है हमारे पास, थोड़ी देर ये बैठेंगी हमारे पास। मुलाइका फातिमा। टीम बी, खाना काबा के कितने कोने हैं? 4 कोने हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़े जानवर में कुर्बानी के कितने हिस्से हो सकते हैं? टीम सी जवाब देंगे, माइक लें। 7 हिस्से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा बताइए, हदीस में किस चीज को मोमिन का हथियार कहा गया है? दुआ। दुआ मोमिन का हथियार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब टीम बी की बारी है। ईद की नमाज का खुतबा कब होता है? नमाज के बाद। नमाज के बाद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सी फर्ज नमाज है जिसमें 3 रकअतें फर्ज हैं? मगरिब। मगरिब की नमाज। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुबहान अल्लाह। खाना काबा के 7 चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? तवाफ। तवाफ कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुबहान अल्लाह। हजरत याकूब के वालिद साहब का नाम बताएं। हजरत इसहाक हजरत अलैहिस्सलाम। इसहाक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुबहान अल्लाह। कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। गारे सौर किस शहर में है? मक्का में या मदीना में? मक्का जवाब में। बाइक पे देंगे। मक्का में। मक्का में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अंबिया इकराम की तादाद कितनी है? कमोबेश 1,24,000। कमोबेश 1,24,000। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लफ्ज़ मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं? उसैद भाई जवाब देंगे। लफ्ज़ मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं? 4 हुरूफ हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुबहान अल्लाह। जुम्मे की नमाज का खुतबा कब होता है? नमाज से पहले होता है, नमाज के बाद होता है? नमाज से पहले। हाँ खुतबा सुनते हैं ना, जवाब आखिरी वक्त में तो नहीं जाते ना। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
खुतबा हज्जतुल विदा किस हिजरी में हुआ, 9 या 10 हिजरी में? 10 हिजरी में। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, जश्न ईद मिलादुन नबी किस तारीख को मनाया जाता है? 12 रबीउल अव्वल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नतुल बकी किस शहर में, ये कब्रिस्तान कहाँ मौजूद है? मदीनातुल मुनव्वरा में। मदीना पाक में। अल्लाह हम सबको जन्नतुल बकी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत बीबी हाजरा ने किन पहाड़ों के दरमियान चक्कर लगाए थे? सफा मरवा। जी, सफा मरवा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, नमाज की 5वीं शर्त बताइए। हाँ, 5वीं शर्त कौन बताएगा? बताइए, माइक दे। नियत। नियत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल थोड़ा सा मुश्किल, कुर्बानी करने का आखिरी दिन कौन सा होता है? तीसरा दिन। दिन कौन सा होता है? दिन नहीं, कौन सी जुल्हिज्जा होती है? 12 जिल्हिज्जा। 12 जुल्हिज्जा की गुरूब आफ्ताब से पहले कुर्बानी की जा सकती है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम भी चलता रहा, सवाल जवाब भी होते रहे, इल्म दीन भी मिलता रहा। अल्लाह हम सबको बरकत अता फरमाए। ईद की रौनकें बकरा ईद सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। माशाअल्लाह। चलो अब इसको टर्न करवा लेते हैं। की रौनकें बकरा ईद, ईद की छोड़ दो, खुद जाएगा। ये अपनी जगह पे भी खुद चला जाता है। ये माशाअल्लाह। इन सबको माशाअल्लाह पता है। अब देखिए, यहाँ बकरे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ईद की रौनकें बकरा ईद, ईद की रौनकें बकरा ईद, ईद की रौनकें बकरा ईद। ये गाय हमारी है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, और ये ईद के दिन कुर्बान होगी इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ ये दुम्बा बहुत प्यारा है, देखें, और इसका चेहरा देखें। हाँ, ये अनोखा दुम्बा है जिसके हाँ, सींग ये भी मुड़े हैं। सींग मुड़े हुए हैं, गोल पूरा रिंग बना हुआ है। की रौनकें बकरा ईद, ईद की रौनकें बकरा ईद, ईद की रौनकें। ये वो बछड़ा है माशाअल्लाह कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के इसाले सवाब के लिए कुर्बान भी होगा और इसका गोश्त भी सैयद साहिबान में तकसीम होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये माशाअल्लाह हमारे इस्लामी भाई ने माशाअल्लाह। FGRF को दिया है कि आप इसको काटें भी और इसका गोश्त भी तकसीम करें। बस दूर है बहुत ज्यादा नहीं। चले माशाअल्लाह, अब इसको भी चलाते हैं इंशाअल्लाह। ये कितना खुश नसीब है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के इसाले सवाब के लिए कटेगा भाई। रौनकें बकरा ईद, ईद की 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 रौनकें बकरा ईद, ईद की। जी प्यारे बच्चों, अब आपने बहुत प्यारे प्यारे जानवर देख लिए। अब आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, अब प्यारे बच्चों, ये बच्चों के साथ सेगमेंट होगा और देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। अब फजर में कितनी रकतें हैं इसमें देखिए, 3 2 तो यहाँ पिन निकाल के इसमें लगाएंगे तो पता चलेगा कि कितनी रकतें। पहली 2 सुन्नतें कितनी है, फर्ज कितने हैं, फिर जोहर में कितनी, असर में कितनी, मगरिब में, इशा में। ठीक है, ये यहाँ मौजूद हैं। अब मुझे बताएं, आपकी तरफ से कौन बताएगा? चलें, फजर में कितनी रकतें हैं? चले, ये पीछे वाले भाई आ जाएं, आप आ जाओ। ठीक है, आप फजर की रकतें लगाएंगे। ठीक है, आजे जल्दी से ढूंढें इसमें से और लगाएं। आप भी आ जाओ। आप बताओगी फजर में कितनी रकतें हैं? आपको पता है? चलो जनाब, तलाश जारी है। फजर में कितनी है आप जबानी बता दें मुझे। 4 सुन्नत और 4 फर्ज कह रहे हैं फजर में। 2 सुन्नत कितनी है? 2 सुन्नत और 2 फर्ज हैं। ठीक है, नहीं नफिल नहीं होती फजर में, ये फजर में आ गई 2 सुन्नतें। ठीक है जनाब, आपने कहा। अब आप बैठ जाएं, अब आप जाएं। चलें, अब इसके बाद क्या होता है आप बताएंगे। 2 सुन्नत के बाद क्या होता है, क्या होती है बताएं, जबानी तो बताएं। 2 फर्ज। 2 फर्ज ढूंढो भाई। चलें, जल्दी से 2 फर्ज ढूंढ के बताएं भाई। आ गए। चलो भाई जनाब, 2 फर्ज हो गए। जवाब दुरुस्त हो गया, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। चलो, अब जोहर में क्या होता है पहले कौन बताएगा? मिशकात आप बताएंगी। अच्छा, जोहर में आप लोग इधर आ जाएं, चलें आप आ जाओ, आप भी आ जाओ, आपको पता है, आ जाओ। चलो, जोहर में पहले क्या होता है बताएं, मुझे बताएं क्या होता है। 4 सुन्नतें ढूंढो भाई।
जल्दी से ढूंढे भाई, जल्दी से 4 सुन्नतें ढूंढ ली भाई, वेरी गुड। अपनी जगह पे बैठे आप, शाबाश। फिर 4 सुन्नतों के बाद क्या होता है बताइए? 4 फर्ज होते हैं। अच्छा चलो 4 फर्ज हम ढूंढ लेते हैं, आपके कहने पर ही हमने 4 फर्ज ढूंढ लिए। अब आप बैठ जाएं, शाबाश। चलें, अब कौन बताएगा? 4 फर्ज और 4 सुन्नत तो हो गई, उसके बाद क्या होता है? चलें आप बताएं, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। आप भी बताएंगी? चलो इनकी भी ले लेते हैं भाई, चलो शाबाश। चलें, क्या होता है बताएं? 2 ये होती है ना 2 सुन्नत, वेरी गुड। ये 2 सुन्नत। अभी आप बैठ जाएं, चलिए आप बैठ जाएं। अब इसके बाद क्या होता है कौन बताएगा? 2 सुन्नत के बाद आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। छोटी गुड़िया ने भी ढूंढ लिया भाई कुछ, अब बैठ जाओ। 2 नफल होते हैं, वेरी गुड हो गया। अब आ जाए असर। अच्छा चलें, असर के बारे में कौन बताएगा? आप आ जाओ, आप आ जाओ, पीछे से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। क्या आप बताओ क्या होता है? 4 सुन्नत, 4 सुन्नत ढूंढ के दो हमें। चलो गुड़िया बता रही है, मरियम, मिशकात फातिमा बता रही है। 4 सुन्नत ढूंढे, जल्दी से ये उठाओ। 4 सुन्नत कहाँ है? ये रही। चलो भाई वेरी गुड, मिशकात फातिमा को भी पता है भाई। और इसके बाद क्या होता है? 4 सुन्नत के बाद 4 फर्ज। 4 फर्ज ढूंढो जल्दी से। चले, मिशकात फातिमा का भी जवाब दुरुस्त हो गया, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश, जाके बैठ जाएं। चलें, अब मगरिब का कौन बताएगा? मगरिब का आप आ जाओ, आप आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, मगरिब का आप बताएं। मगरिब में क्या होता है? 3 फर्ज, वेरी गुड। चलो, और उसके बाद क्या होता है कौन बताएगा? आप आ जाओ। 2 सुन्नत। चलिए जल्दी से 2 सुन्नत ढूंढ के दे हमें। ये आ गया जनाब, बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं। और अब फिर कौन बताएगा? 3 फर्ज 2 सुन्नत के बाद क्या होता है? चलें आप बताएं, आप आ जाएं। 2 नफल, वेरी गुड। आप इशा का बताएं हमें। चलो मिशकात आप बैठ जाओ। आप हट जाओगे तो बेटा ये बाकी लोग करेंगे ना। आप हट जाए, आप हट जाए। चलो शाबाश, आप यहाँ आ जाए। चलें, इशा की नमाज आप बताएं। सरकारें काले 4 सुन्नत के बाद क्या होता है? ओहो हो, छोटी गुड़िया ने पहले ही उठा लिया है। उसके बाद 4 फर्ज होते हैं, 4 फर्ज भी आ गए। उसके बाद जल्दी बताएं। 2 सुन्नत, वेरी गुड। फिर क्या होता है? नहीं, हाँ 2 नफल भी आ गए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 3 वितर, वेरी गुड। और उसके बाद 2 नफल। टोकरी खाली हो गई। हटो, बच्ची कह रही है नमाजें पूरी हो गई, टोकरी खाली हो गई। चले माशाअल्लाह, गेम ही गेम में हमें ये पता चल गया कि अच्छा आप सब बच्चे मेरे साथ मिलकर दोहराएंगे, जो व्यूअर्स है वो भी दोहराएंगे। फजर में कितनी नमाजें होती है? 2 सुन्नत, फिर 2 फर्ज। जोहर में 4 सुन्नत, फिर 4 फर्ज, फिर 2 नफल। असर में 4 सुन्नत, 4 सुन्नत, फिर 4 फर्ज। मगरिब में 3 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल। इशा में 4 सुन्नत, 4 सुन्नत, फिर 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल, फिर 3 वितर, फिर 2 नफिल। माशाअल्लाह, गेम में हमने नमाजों की रकतें भी याद कर ली। हम नियत कर लें कि नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम आज का नाम था बच्चों की बकरीद हाजी अब्दुल हबीब तारिक के साथ। उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम में मजा आया होगा और बहुत सी नॉलेज आपको इसमें हासिल हुई होगी। तो हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट इवेंट पे। अपना खास ख्याल रखिएगा, हमें तो अमल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईद की रौनकें बकरीद, 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 ईद की रौनकें बकरीद।